Good morning, students. In Advanced Java Programming, Unit number 3, Servlet API and its overview. In this session, we will see a program to call the servlet from the HTML file. Previously, we have discussed about how we can implement a servlet by using the NetBeans IDE and how we can run the program, right? So now in this session we will see how we can call the servlet file from the HTML file. So write a Java servlet program to call the servlet from the HTML hyperlink. So simply what you have to do, just in a index.html file, right, कि जो हम एट अ नेट मीन्स जब हम वेब एप्लीकेशन हम क्रिएट करते हैं एट दैट टाइम यू हैव सीन दैट कि वहां पे एक index.html फाइल ऑलरेडी क्रिएट होती है. सो इन दैट पर्टिकुलर फाइल you just put one anchor tag in a HTML file, give the reference, right? So in a reference you have to write a slash your web application name slash your servlet name. So here servlet demo 2 is a web application name slash hyperlink demo is your servlet file name, which is your hyperlink demo dot java file, right? And close the anchor tag. So this is the HTML file of your web application by using which you can call a servlet file, right? So you just have to put a hyperlink into anchor tag, right? And this is the Java program where we have import a servlet, we have import the HTTP, right, and IO files or IO package. Now we have created one class hyperlink demo which is extended from the HTTP servlet. We have taken one string message, print writer out, print writer object out, and in a init method we have initialized the message with the hello world my first servlet program. And next one, in a do get method we will write first set the content type which is the text or a HTML response dot set the content type. After that the out is equal to response dot get writer, which will write the response to the out object, and finally we print the out object with in a h1 tag. So in a servlet or in a Java program or whatever you write in a servlet program, this is the h1 tag, right? So you can also put your HTML tag in a servlet file, right? जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर h1 टैग को पुट किया है, प्लस मैसेज को प्रिंट करवाया, प्लस करके h1 टैग को हमने क्लोज किया. तो जब ये रिस्पॉन्स आपकी वेब ब्राउजर में जब दिखेगा एट दैट टाइम, जो h1 टैग है उसके बीच में जो है वो आपका मैसेज प्रिंट होगा और जो h1 टैग की जो भी प्रॉपर्टीज है वो उस पर अप्लाई होगी. सो अगर आपको कोई भी HTML टैग जावा प्रोग्राम के अंदर भी आपको यूज करना है तो आप उसको इस तरह से यूज कर सकते हैं, राइट? और सेपरेटली अगर आप करो तो भी ठीक है, अगर सेपरेटली नहीं करते हो और जावा प्रोग्राम के अंदर इनबिल्ड आपको यहाँ वहां पे उसको स्पेसिफाई करना है, देन यू कैन डू दैट. सो यहाँ पे डू गेट मेथड क्लोज कर दी. पब्लिक वॉइड डिस्ट्रॉय के मेथड के अंदर हमने आउट ऑब्जेक्ट को क्लोज करवा दिया. तो ये हो गया हमारा जावा प्रोग्राम. नाउ जब हम इसको सेव करके रन करेंगे एट दैट टाइम क्या होगा कि सबसे पहले एक हाइपरलिंक डेमो नाम का जो आपका इंडेक्स फाइल जो भी है वो सबसे पहले कॉल होगी.
और उसमें हाइपरलिंक डेमो डॉट जावा नाम का जो ये हमने स्पेसिफाई किया था वर्ड, उस पे हाइपरलिंक आ गई। जैसे ही हम इस पे टिक करेंगे, राइट, तो जो हमारा हाइपरलिंक डेमो नाम का जो भी जावा फाइल है, और वी कैन से द सर्वलेट फाइल, वो एग्जीक्यूट होगी, राइट। और उसका जो आउटपुट है आप यहाँ पे देख सकते हो, हेलो वर्ल्ड माय फर्स्ट सर्वलेट प्रोग्राम, जो है वो H1 टैग के अंदर हमने स्पेसिफाई किया था, तो H1 टैग की जो प्रॉपर्टीज है वो इस पे अप्लाई हो गई है, राइट। सो दिस वे वी कैन कॉल द जावा servlet program from the HTML file by using the hyperlink, राइट। और आप यहाँ पे उसके URL में भी दोनों स्पेसिफिक फाइल को आप यहाँ पे देख सकते हो, ये सर्वलेट डेमो 2 और उसके अंदर हाइपरलिंक डेमो की जो आपकी सर्वलेट फाइल है वो है, और ये आपकी जो फर्स्ट है वो 2.html फाइल है, राइट, कि जो हमने HTML फाइल ली थी, राइट। नाउ नेक्स्ट वन वी विल सी अ डू गेट मेथड। सो HTML का जो कोड है वो, उसमें HTML हेड टैग, टाइटल, हेड टैग क्लोज, बॉडी टैग के अंदर एक फॉर्म लेंगे, और उसमें हम एक्शन टैग के अंदर हम दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे यहाँ पे एक्शन टैग के अंदर, कि जो फाइल आपको रन करनी है, जो सर्वलेट फाइल आपको एग्जीक्यूट करवानी है, वो आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो। प्रीवियस एग्जांपल था हमारा एंकर टैग से, ये प्रोग्राम है हमारा बाय यूजिंग द डू गेट मेथड से। सो डू गेट मेथड के लिए आपको सिर्फ क्या करना है कि एक फॉर्म टैग लेना है, और उसमें एक्शन में आपको जो पाथ है आपके सर्वलेट फाइल का, वो सर्वलेट फाइल का पाथ यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करना है। उसके बाद एक फॉर्म टैग के अंदर हमने एक लेबल लिया है एंटर ईमेल, जिसका टाइप है टेक्स्ट और नेम है ईमेल, और उसके बाद हमने ले लिया सबमिट बटन। तो जब भी हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, एट दैट टाइम जो फॉर्म है उसका एक्शन टैग परफॉर्म होगा, और वो डायरेक्टली ले जाएगा हमें डू गेट डेमो नाम की जो सर्वलेट फाइल है उस पे, और उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो फॉर्म टैग क्लोज, बॉडी क्लोज एंड HTML क्लोज, तो ये हो गई हमारी HTML फाइल, राइट, कि जिसका जो आउटपुट है वो आपको इस तरह से दिखेगा। जैसे ही आप यहाँ पे ईमेल एड्रेस टाइप करके सबमिट द क्वेरी पे आप टिक करोगे, एट दैट टाइम क्या होगा कि जो एक्शन टैग के अंदर ये जो स्पेसिफाई की है फाइल पाथ, उस फाइल को जाके वो एग्जीक्यूट करेगा। और हमारी जो डू गेट डेमो नाम, और सॉरी डू गेट डेमो डॉट जावा की जो सर्वलेट फाइल है, उसका जो कोड है वो कुछ इस तरह से है, राइट। ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज के अंदर हम कुछ नहीं रखते हैं, डू गेट मेथड के अंदर क्या करते हैं कि एक हम स्ट्रिंग स्पेसिफाई करते हैं ईमेल नाम की, और यहाँ पे हमने गेट पैरामीटर, सॉरी गेट पैरामीटर नाम की जो मेथड है उसको कॉल करवाया है, किसकी, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। इसका मीनिंग क्या है कि ये जो रिक्वेस्ट है, ऑब्जेक्ट है जो हमने यहाँ पे डू गेट मेथड में स्पेसिफाई किया है, वो क्या करेगा कि जब आप HTML फॉर्म में होंगे और जो ईमेल एड्रेस आप टेक्स्ट बॉक्स के अंदर टाइप करोगे, और जब आप सबमिट क्वेरी पे क्लिक करोगे, एट दैट टाइम रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट जो है वो उस पर्टिकुलर जो ईमेल एड्रेस आपने स्पेसिफाई किया है उसको लेके सर्वलेट को कॉल करेगा। और सर्वलेट हम क्या करेंगे कि सर्वलेट में वो जो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर जो ईमेल आईडी है उसको हमें फेच करना है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे कि रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट जो है उसकी गेट पैरामीटर नाम की मेथड को कॉल करवाएंगे। तो जो भी रिक्वेस्ट के अंदर जो भी पैरामीटर्स रहेंगे वो उसको फेच करके हमें देगा। और किस तरह से देगा, तो कि यहाँ पे आपको उसके जो पैरामीटर आपको फेच करना है उसका नाम यहाँ पे स्पेसिफाई करना है। तो जब हमने टेक्स्ट बॉक्स लिया था ईमेल का, एट दैट टाइम हमने वहां पे उसका नेम स्पेसिफाई किया था ईमेल, तो वो ईमेल आपको यहाँ पे लिखना है, राइट। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो रिस्पॉन्स का जो टाइप है वो हमने सेट कर दिया टेक्स्ट, और जो आउट पैरामीटर है उसको हम गेट राइट करेंगे, और फाइनली जो ईमेल एड्रेस है हम उसको क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। तो जब ये एग्जीक्यूट होगा, एट दैट टाइम क्या होगा कि सबसे पहले हमारी जो HTML फाइल है वो एग्जीक्यूट होगी। यहाँ पे हमने ईमेल एड्रेस स्पेसिफाई किया, ठीक है। जब सबमिट क्वेरी के पे क्लिक करेंगे, एट दैट टाइम क्या होगा कि जो ईमेल एड्रेस है वो आपका
सेंड होगा कहाँ पे, जो सर्वलेट की जो फाइल है उस पे वो ट्रांसफर होगा। और जैसे ही हमने उसका गेट पैरामीटर मेथड कॉल की एट दैट टाइम, वो उसको फेच करके यहाँ पे प्रिंट कर देगा। और आप यहाँ पे इसकी यूआरएल में भी देख सकते हो कि डू गेट डेमो क्वेश्चन मार्क ईमेल आईडी इज इक्वल टू swati.sharma, राइट। और उसकी पूरी ईमेल एड्रेस यहाँ पे आ गई है। तो ये है डू गेट मेथड। और आपको पता है कि डू गेट मेथड हम कब यूज करते हैं, तो जो भी पैरामीटर हम पास करेंगे वो आपको यूआरएल में दिखाई देगा, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन इज अ डू पोस्ट मेथड। सो डू पोस्ट मेथड क्या करेगा कि HTML को लिंक करेगा विद द जावा, और उसकी जो HTML फाइल है जिसमें हम मैक्सिमम नंबर फाइंड करेंगे, तो फॉर्म एक्शन टैग के अंदर हम क्या करेंगे, सर्वलेट टेम्परेरी स्लैश मैक्स नाम का जो फॉर्म एक्शन टैग है वो लिया। यहाँ पे मेथड स्पेसिफाई करेंगे पोस्ट। अगर हम कोई भी मेथड स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो डू गेट मेथड को कॉल करेगा। बट इफ वी स्पेसिफाई द मेथड पोस्ट देन इट विल executed by the do post method. So फॉर्म टैग के अंदर एक्शन टैग एक्शन एट्रीब्यूट, उसमें हमने उसका सर्वलेट फाइल का पाथ स्पेसिफाई कर दिया। उसके अंदर एक नंबर लेते हैं टेक्स्ट और उसका नेम स्पेसिफाई कर दिया नंबर 1। दूसरा नंबर एज एन इनपुट लेंगे, राइट, जिसका नाम हमने स्पेसिफाई कर दिया नंबर 2। नाउ सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, फॉर्म को क्लोज किया, बॉडी क्लोज एंड HTML क्लोज। तो ये फाइल हो गई हमारी HTML की, राइट। और हम मेथड यहाँ पे यूज करेंगे पोस्ट मेथड। नाउ ये तो बात हो गई कि हम यूजर से 2 नंबर इनपुट लेंगे। नाउ इसका लॉजिक क्या होगा, ठीक है। तो जो लॉजिक, उससे पहले ये इस तरह से आपको उसका आउटपुट दिखेगा। अब उसका लॉजिक फाइल, तो लॉजिक फाइल में क्या करेंगे हम कि डायरेक्टली हमने डू पोस्ट मेथड को कॉल किया, रिक्वेस्ट रिस्पांस ऑब्जेक्ट स्पेसिफाई कर दिया, एक्सेप्शंस थ्रो कर दिए, सर्वलेट एक्सेप्शन एंड आईओ एक्सेप्शन। नाउ सबसे पहले 2 नंबर लेंगे N1 एंड N2, जिसको इनिशियलाइज करवाएंगे विद द 0। ये दोनों किस लिए लिए, तो कि जो सबमिट कराएंगे HTML फॉर्म के अंदर, उन दोनों को हैंडल करने के लिए, राइट। ओके, तो N1 एंड N2 दो इंटीजर वेरिएबल ले लिए जो होल्ड करेंगे कि जो इनकमिंग रिक्वेस्ट में हम जो 2 नंबर को एज एन इनपुट देंगे, राइट। सो उसके रिस्पॉन्स का कंटेंट टाइप सेट कर दिया। उसके बाद प्रिंट राइटर ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करवा के रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर कर दिया। नाउ N1 इज इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स मेथड कॉल करवा के रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर जो है नंबर 1 में, उसको हमने यहाँ पे फेच किया। और इसको पार्स करवाने की क्यों जरूरत पड़ी, ताकि जो इनपुट नंबर्स आएंगे वो इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग हो गए। यहाँ पे हमें वो चाहिए एज अ न्यूमेरिक वैल्यू। सो जो उसकी रेपर क्लास है इंटीजर, उसका यूज करके उसकी हमने पार्स इंट मेथड कॉल करवाई कि जो नंबर ये इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग आया उसको वो कन्वर्ट करे इनटू द इंटीजर। द सेम वे N2 को भी हमने फेच करवाया। नाउ हमें यहाँ पे क्या करना है कि जो मैक्सिमम नंबर है वो फाइंड करना है। ये 2 जो इनपुट दिए उसमें से जो मैक्सिमम है उसको हमें प्रिंट करवाना है। तो हमारा जो लॉजिक रहेगा वो क्या रहेगा कि इफ द N1 इज अ ग्रेटर देन N2 देन आउटपुट डॉट प्रिंट राइट N1 इज इक्वल टू N1 की जो वैल्यू है वो डबल इन्वर्टेड में इज अ मैक्स नंबर। इल्स if the N2 is a greater than N1 then we will write the N2 is a maximum, and else if N1 is equal to N2 then both are equal to number। और यहाँ पे हमने उसकी जो डू पोस्ट मेथड है उसको कर दिया क्लोज। तो यहाँ पे हमने उसकी तीनों पॉसिबिलिटी चेक कर ली। N1 ग्रेटर है तो वो प्रिंट होगा, N2 ग्रेटर है तो वो होगा, बट अगर इक्वल टू है तो बताएगा कि बोथ आर इक्वल। तो ये हो गया हमारा सर्वर साइड का लॉजिक जो हमारे सर्वलेट फाइल में होगा, राइट। सो इसको जब हम, ये हमारी डू पोस्ट मेथड और ये हमारी जो मेन जो HTML से हमें 2 इनपुट मिलेंगे उसको हमने यहाँ पे फेच करवाया। सो
जब हम एग्जीक्यूट करेंगे maximum.html फाइल को एट दैट टाइम हमें दो इनपुट देने पड़ेंगे, तो हमने नंबर 1 इनपुट दिया 4 एंड नंबर 2 इनपुट दिया 20। और जब हम सबमिट क्वेरी के क्लिक करेंगे एट दैट टाइम क्या होगा कि जो हमारा सर्वलेट फाइल है मैक्स नाम का max.servlet वो एग्जीक्यूट होगा एंड वो दिखाएगा कि num2 इज इक्वल टू 20 विच इज द मैक्सिमम नंबर। और यहाँ पे आप उसका यूआरएल भी देख सकते हो कि यहाँ पे कोई भी पैरामीटर हमें इन द एड्रेस बार में यहाँ पे यूआरएल में नहीं दिखा रहा है क्योंकि ये डू पोस्ट मेथड है इसीलिए, राइट। तो ये हमारी थी डू पोस्ट मेथड, राइट। सो अगर हम ये सेम प्रोग्राम बाय यूजिंग द डू गेट मेथड से करते एट दैट टाइम क्या होता कि नंबर 1 और नंबर 2 की जो वैल्यू हमने HTML फॉर्म में जो स्पेसिफाई की थी वो URL के साथ ही पास होगी, तो वो डिस्क्लोज हो जाएगी, राइट। सो ये हो गई हमारी डू गेट एंड डू पोस्ट मेथड दोनों बाय यूजिंग द HTML एंड कॉलिंग द सर्वलेट फाइल फ्रॉम द HTML। सो आज का सेशन हम यहीं कंक्लूड करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।